अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। टुडे वी स्टार्ट न्यू बिहेवियरिज्म। इसमें हम स्टडी करेंगे B.F. स्किनर को। B.F. स्किनर, न्यू बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में हमने वॉटसन को स्टडी किया था और आइवन पावलोव को हमने स्टडी किया, उसके एक्सपेरिमेंट हमने देखे। ठीक है। अब न्यू बिहेवियरिज्म हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम स्टडी करेंगे B.F. स्किनर। इसकी थोड़ी सी हम पहले हिस्ट्री देख लेंगे। B.F. स्किनर was born in 1904 and he died in 1990. He belongs to a middle class family. In high school, Skinner did well in literature but poorly in science. He went to Hamilton College, a small liberal arts school in New York, where he majored in English. Skinner did not fit well into college life. Skinner graduated from Hamilton College with a bachelor's degree in English literature without having had a course in psychology. His focus was to study behavior. इस पे इसने बहुत आर्टिकल्स भी लिखे बिहेवियर पे, काफ़ी चीज़ें इसने लिखी बिहेवियर पे। Having failed to describe human behavior through literature, Skinner decided to describe it scientifically. Skinner had read the works of Pavlov and Watson and was greatly impressed. On his return from Europe in 1928, he enrolled in the graduate program in psychology at Harvard University. Skinner earned his master's degree in 2 years in 1930 and his doctorate the next 1931, and then remained at Harvard for 5 more years as a postdoctoral fellow. Skinner began his teaching career at the University of Minnesota in 1937 and remained 3 years until 1945. While he was at Minnesota, Skinner published The Behavior of Organisms in 1938. The Behavior of Organisms, which established him as a nationally prominent experimental psychologist. In 1945, Skinner moved to Indiana University as chairman of the psychology department, where he remained until 1948. When he returned to Harvard at Indiana, Skinner overlapped with others that would flourish during the heyday of American behaviorism. His books was Particulars of My Life in 1976, The Shaping of a Behaviorist 1979, and A Matter of Consequences 1983. वॉटसन स्किनर जो था वो आइवन पावलोव
और वॉटसन के काम से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। इसी वजह से इसने बिहेवियरिज्म पे काम करना स्टार्ट किया और बिहेवियर ही वांट टू स्टडी बिहेवियर्स, इसलिए इसने इसको न्यू बिहेवियरिज्म में फादर समझा जाता है, उसका फाउंडर समझा जाता है न्यू बिहेवियरिज्म का। इसकी स्टडी को नाम दिया गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग का, and he known as a father of operant conditioning. B.F. Skinner is regarded as a father of operant conditioning. He was an American psychologist. His theory was based on the work of Thorndike. थॉर्नडाइक की स्टडी से ये बहुत इम्प्रेस था। थॉर्नडाइक की स्टडी को ये आगे लेके चला। थॉर्नडाइक की स्टडी थी लॉ ऑफ अफेक्ट, जिसको इसने स्किनर इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म इनटू लॉ ऑफ अफेक्ट इज रीइंफोर्समेंट, REINFORCEMENT, reinforcement. In 1930s, B.F. Skinner began his experiments on rats, cats, pigeons, and monkeys. To do all this, he invented the Skinner box, or as it is often called, the operant chamber. इसने बिहेवियर को स्टडी करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, रैट्स पे, कैट्स पे, पिजन्स पे, मंकीज पे। इसने he made a box that known as Skinner box or operant chamber. उसने उस बॉक्स में स्किनर ने एक रैट को छोड़ा, रैट को बंद कर दिया इसने उस बॉक्स में। इसके एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली थॉर्नडाइक से मिलते जुलते थे, इसलिए ये क्योंकि ये थॉर्नडाइक के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनसे इम्प्रेस था। इसने रैट को एक चैम्बर में बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया जिसको। तो इसने देखा, इसने उसको, अब ये क्या था, बेसिकली उसके बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहा था। अब इसने देखा कि रैट जो है इधर उधर भाग रहा है, पाँव मारता है। एक लीवर इसने उसमें रखा कि जैसे ही उस लीवर को प्रेस किया जाता था, जो केज था उसका डोर खुल जाता था। ठीक है, तो अब इसने इसीलिए वो लीवर रखा ताकि वो सीखे कि कैसे लीवर को प्रेस करना है और उसको गेट उसका खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और इसमें इसने केज बनाया कि एक लीवर अंदर दिया गया केज के, कि जैसे वो लीवर को प्रेस करेगा उसको खाना मिलेगा रैट को। वो उसके लिए क्या था, खाना, उसका रीइंफोर्समेंट था उसके लिए। ठीक है, तो जैसे ही लीवर इधर उधर वो रैट इधर उधर भागता रहा और अचानक उससे लीवर प्रेस हो गया। एक दफ़ा अचानक हुआ, दूसरी दफ़ा एक्सीडेंटली हो गया, तीसरी दफ़ा। लेकिन ऐसा ऐसा रैट ने सीख लिया कि जैसे वो लीवर प्रेस करता है उसको खाना मिलता है, उसको फूड मिलता है। वो उसके लिए क्या था, रीइंफोर्समेंट। तो फिर वो सीख गया कि जिस चीज़ में उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है वो वाले बिहेवियर वो बार बार कर रहा है, वो वाले एक्शंस वो बार बार रिपीट हो रहे हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू स्किनर के रीइंफोर्समेंट है जो किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल साबित होती है। इसकी स्टडी को ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया। क्लासिकल कंडीशनिंग की स्टडी हमने पढ़ी जो आइवन पावलोव की थी, और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है जो B.F. स्किनर की है। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना। ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय B.F. स्किनर। अच्छा, अब इन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ पिजन स्पेस ने किए और उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कुछ चिंपैंजीज पे किए, इसी तरह कि मंकीज़ को रूम में बंद कर दिया जाता था, ऊपर पंखी के साथ वो बनानाज लटका दिए जाते थे। तो कुछ एक स्टूल रख दिया, एक टेबल रख दिया, एक स्टिक रख दी,
तो मंकीज आहिस्ता आहिस्ता देखते रहे, जंप करते रहे, बनानास की तरफ ना पहुंच सके बनानास तक। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ ट्रायल एंड एरर से वो सीखे, कभी करते थे कुछ सही हरकतें, कभी कुछ गलत हरकतें करते थे। तो उन्होंने फिर चिंपैंजीज ने क्या किया, टेबल रखा, टेबल के ऊपर स्टूल रखा और फिर स्टिक को पकड़ के स्टिक से बनानास तोड़े। तो ये स्किनर के अकॉर्डिंग कि जो चीज़ें जिन एक्शंस से आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है, आप उन एक्शंस को रिपीट करते हो और वो आपके एक्शन स्ट्रेंथन होते जाते हैं। और जो जहाँ से आपको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती या कोई हार्मफुल हो रहा होता है, कोई रिजल्ट आ रहा होता है, तो आप उससे अवॉइड करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इसने रैट को जब बंद किया केज में, तो एक तो लीवर प्रेस करने से उसको फूड मिलता था, वो उसको रीइंफोर्समेंट मिलती थी। एक एरिया केज का इसने ऐसा बनाया जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था, जहाँ पे जाने से उस कॉर्नर में जाने से करंट सा लगता था रैट को। तो स्किनर बॉक्स में एक एरिया ऐसा इसने बनाया कि जहाँ जब रैट वहाँ जाता था उसको करंट सा लगता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा, तो अगर रैट ने सीख लिया कि इस एरिया में मैंने नहीं जाना, यहाँ मुझे मतलब कुछ होता है, कुछ रॉन्ग होता है मेरे साथ, समथिंग इज़ रॉन्ग, तो वहाँ से अवॉइड करने लग गया फिर रैट, उस एरिया में नहीं गया। तो उसने वो चीज़ सीख ली कि इस एरिया में जाने से मुझे करंट लगता है। ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद स्किनर ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए। उसने हमें बताए जो कि थे, नंबर 1 इज़ रीइंफोर्समेंट, नंबर 2 पनिशमेंट, नंबर 3 शेपिंग, नंबर 4 एक्सटिंक्शन, नंबर 5 मॉडलिंग। ये 5 प्रिंसिपल्स उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद बताए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये मैं डेफिनेशंस आप लोगों को नोट करवाती जाऊँगी, ये डेफिनेशंस आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग है क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग हमने देखी थी, वो थी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सामने आता है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसके ऑपोजिट है, उसमें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं आता। इसकी डेफिनेशन है जी, लर्निंग इन विच वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस। Number 2 definition. Number 2, operant conditioning is a type of learning where behavior is controlled by consequences. Number 3, it explains the learning of voluntary behavior. Number 4, a behavior will occur more frequent if given positive reinforcements and will decrease infrequent by punishment. यानी जो वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज हैं, जो भी हमारे एक्शंस हैं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं उन एक्शंस को कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कोई भी रिवॉर्ड या पनिशमेंट, यानी रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट। यानी कोई भी रिवॉर्ड दे के आप बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और पनिशमेंट दे के आप किसी बिहेवियर को वीक कर सकते हैं। स्ट्रेंथन क्या है? बिहेवियर विच इज रीइंफोर्स्ड टेंड्स टू बी रिपीटेड, दैट इज स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन क्या है? रिपीट कर लूँ, बिहेवियर विच इज रीइंफोर्स्ड टेंड्स टू बी रिपीटेड, दैट इज स्ट्रेंथन। वीकेंड क्या है? किसी भी बिहेवियर को वीक करना। बिहेवियर विच इज नॉट रीइंफोर्स्ड tends to die out or be extinguished, that is weakness या weakened। यानी जिस बिहेवियर को आप रीइंफोर्स करोगे, रिवॉर्ड देते जाओगे, वो स्ट्रेंथन होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जिस बिहेवियर को रीइंफोर्स्ड नहीं किया जाएगा, वो वीक होता होता खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। वो क्या है? वीकेंड।
अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर कि कोई भी एक्शन, कोई भी बिहेवियर को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो आप करते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कोई भी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, कोई भी किसी भी रिवॉर्ड के थ्रू आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो या वीक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसकी स्टडी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ये नहीं कि कोई आलात वगैरह, इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि हम ये रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे होते हैं, कोई रिवॉर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल स्टडी भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ठीक है जी, अब इसके कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स हम देखते हैं जी। नंबर 1 है जी रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले रीइंफोर्समेंट होता क्या है, इन्फोर्समेंट होती क्या है? डेफिनेशन नोट कर लें। रीइंफोर्समेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस दैट विल स्ट्रेंथन एन ऑर्गेनिजम्स फ्यूचर बिहेवियर। Reinforcement is a consequence that will strengthen an organism's future behavior. Reinforcement क्या है? एक ऐसा consequence है जो कि किसी भी behavior को strengthen करने के लिए यूज किया जाता है। Types of reinforcement. There are 2 types of reinforcement. There are 2 types of reinforcement: positive reinforcement, negative reinforcement. Positive reinforcement, negative reinforcement. Positive reinforcement क्या है? सबसे पहले behavior is increased by reward, that is called positive reinforcement. यानी किसी भी बिहेवियर को आप इंक्रीज कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो किसी भी रिवॉर्ड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अब एक मदर कहती है अपने बेबी को, अपने बेटे को, बड़े बेटे को या बेटी को, कि आपने छोटे भाई का ख्याल रखना है, मैं किचन में काम कर रही हूँ। अब बेबी आपको मैं चॉकलेट दूंगी, आपने भाई का अच्छा सा ख्याल रखना है या बहन का अच्छा सा ख्याल रखना है। ठीक है, और बेबी बैठा हुआ है, उसका अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है, उसके पास बैठा हुआ है कि मम्मी मुझे चॉकलेट देंगी। वो चॉकलेट उसके लिए क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। Child increases his kind behavior toward his younger brother or sister to get praise or to get chocolate. That is positive reinforcement. Reinforcement increases desired behavior. Actually, child got chocolate whenever he succeeded in taking care of his younger brother. ठीक है ना? तो ये जो मामा कहती हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने अच्छा ख्याल रखा भाई का, ये चॉकलेट देती हैं, ये उसके लिए क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स। अब एक टेस्ट में टीचर टेस्ट चेक करिए, एक और एग्जांपल देती हूँ कि हम पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, टीचर कहती हैं टेस्ट में दे देती हैं एक्सीलेंट, गुड, स्टार दे देती हैं। वो क्या है? ये सब चीज़ें भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अब ड्यूरिंग लेक्चर, हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, क्लास में लेक्चर ले रहे हैं, कोई बच्चा से क्वेश्चन पूछा है मैम ने, बच्चा उसका सही आंसर दे रहा है, तो टीचर कहती हैं वेरी गुड। ये उसके लिए क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, मजीद स्ट्रॉन्ग करती है। इसकी एक और डेफिनेशन नोट कर लें। एडिंग अ स्टिमुलस विच स्ट्रेंथन a response and make it more likely to recur. ठीक है, अब स्किनर के एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें कि जो रैट को फूड मिलता था वो उसके लिए क्या था? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थी। स्किनर रिवॉर्डेड हिज रैट्स विद फूड, वो उनके लिए क्या थी? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब है जी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? Taking away a stimulus which strengthens a response and makes it more likely to recur.
एक और इसकी डेफिनेशन, रिमूविंग और अवॉइडिंग सम अवर्सिव स्टिमुलस। अब इसमें क्या किया जाता है कि कोई ऐसे स्टिमुलस से अवॉइड किया जाता है, ऐसे स्टिमुलस से एस्केप किया जाता है जो आपके लिए पेनफुल साबित होते हैं। जैसे स्किनर के एक्सपेरिमेंट में जब रैट उस स्पेसिफिक एरिया में जाता था जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगता था उसको, वो उसके लिए क्या था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे कि उसने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया उस एरिया से। उसको पता था कि यहाँ करंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक है, ठीक है। वो सीख गया कि मैंने इस एरिया में नहीं जाना। बिहेवियर इज इंक्रीज्ड बाय अवॉइडेंस और एस्केप। अच्छा, अब वो बच्चे की एग्जांपल हमने ली थी कि एक मदर ने कहा कि बेटा आप छोटे बहन भाई के पास बैठें, इसका ख्याल रखें, मैं कुकिंग कर रही हूँ। अब बच्चा एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से किसी चॉकलेट या तारीफ की वजह से वहाँ बैठा है। अब अगर बच्चा इसलिए छोटे बहन भाई का ख्याल रखे कि अगर मैंने ना रखा तो मामा से मार पड़ेगी या मामा से डांट पड़ेगी, वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसके बिहेवियर को तो स्ट्रेंथन कर रहा है, लेकिन वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यानी उस मार से बचने के लिए, उस डांट से बचने के लिए बच्चा अपने यंगर ब्रदर का या यंगर सिस्टर का ख्याल रख रहा है। एक्टिव अवॉइडेंस ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस इंक्रीजेस डिजायर्ड बिहेवियर। अब इसके एक और एग्जांपल लेती हूँ कि एक बच्चा है, उसको बेड वेटिंग की आदत है, ठीक है। अब मामा ने कहा है कि अगर आपने रात को अगर बेड वेटिंग की तो ये जो नीचे शीट्स हैं, क्लोथ्स हैं, ये आप वो खुद वॉश करेंगे, ठीक है। अब उसने अगर बेड वेटिंग कर दी बेबी ने, मामा ने उससे क्लोथ्स वॉश कराए, ठीक है। क्लोथ्स वॉश कराए तो अब उसको पता है कि मैंने अगर नेक्स्ट डे भी अब ऐसे किया तो मैंने कल क्लोथ्स मुझे वॉश करने पड़े थे, मुझे आज भी वॉश करने पड़ेंगे। तो उस वॉशिंग से बचने के लिए बच्चा क्या करेगा कि बेड वेटिंग आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा। ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बिहेवियर इसमें स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अवॉइडेंस के थ्रू, एस्केप के थ्रू। ये क्या है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी प्रिंसिपल अभी आप इसको अंडरस्टैंड करें, बाकी प्रिंसिपल्स फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ये फिर लेंथी हो जाएगा लेक्चर। ये हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है। उसके बाद है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, अब नंबर 2 प्रिंसिपल इसका पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, बिहेवियर इज डिक्रीज्ड बाय सप्रेशन और डिलीवरी ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस डिक्रीजेस अनवांटेड बिहेवियर। अब हमने किसी पनिशमेंट कब दी जाती है, किसी भी अनवांटेड बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, डिसअपियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को नेल बाइटिंग की आदत है, ठीक है, तो अब उसको पनिशमेंट, उसके पता है कि अगर वो बच्चा नेल बाइटिंग कर रहा है तो मामा उसको पनिश करेंगी। उसके फिंगर्स में कोई मतलब वो चिलीज लगा दी मामा ने, या उसको मामा ने मारा है, तो ये क्या है, उसके लिए पनिशमेंट है, ठीक है। अब एक बच्चा क्लास में कोई मिसबिहेव कर रहा है, या मैम ने उससे कुछ क्वेश्चन किया, उसको नहीं आता, मैं उसको खड़ा कर देती, लेकिन स्टैंड अप, ये उसके लिए क्या है, पनिशमेंट, ठीक है। या अगर मैं उसको कहती हूँ यही जो क्वेश्चन, जो लेक्चर है आपका, ये आपने 10 टाइम्स लिख के लाना है, ये क्या है उसके लिए, ये जो लिख के लाने वाला जो है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। लेकिन अगर उसको मैं खड़ा कर रही हूँ या क्लास से निकाल देती हूँ, वो उसके लिए पनिशमेंट है, ठीक है। ठीक हो गया।
अब डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं. विद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यू आर इंक्रीजिंग अ बिहेवियर, whereas with punishment you are decreasing a behavior. नेगेटिव reinforcement, पॉजिटिव reinforcement से तो बिहेवियर इंक्रीज हो ही रहा है, स्ट्रेंथन हो ही रहा है, लेकिन नेगेटिव reinforcement से भी बिहेवियर इंक्रीज होता है, जबकि पनिशमेंट से वो बिहेवियर डिक्रीज होता है. कोई बच्चे क्लास में बोल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, मैंने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया, वो बिहेवियर नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि मैम ने क्लास से बाहर निकाल देना है, तो वो जो अनवांटेड बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. नेगेटिव रीइंफोर्स स्ट्रेंथन्स रिस्पॉन्स, वेयरएज पनिशमेंट वीकन्स द रिस्पॉन्स. ठीक हो गया. उसके बाद एक्सटिंक्शन, ये प्रिंसिपल हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में भी पढ़ा था. बिहेवियर इज एलिमिनेटेड बाय नॉन रीइंफोर्समेंट. एक्सटिंक्शन क्या था कि जब उसको क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने देखा था कि जब अनकंडीशन स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस के साथ इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता था, प्रोवाइड नहीं किया जाता था, तो जो कंडीशन रिस्पॉन्स था वो ख़त्म हो जाता था, एलिमिनेट हो जाता था. इसी तरह इसमें भी यही है कि बिहेवियर एलिमिनेट हो जाता है जब उसको रीइंफोर्स नहीं किया जाता, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, तो बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज होता होता वो डिसअपियर हो जाता है. द डिसअपियरेंस ऑफ अ प्रीवियसली लर्नड बिहेवियर व्हेन द बिहेवियर इज नॉट रीइंफोर्स्ड. ठीक हो गया. एक्सटिंक्शन. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज शेपिंग. शेपिंग इन्वॉल्व्स रिवॉर्डिंग closer and closer approximations of the wanted behavior until the correct behavior is achieved. शेपिंग क्या है कि यानी किसी भी बिहेवियर को हम देखें शेप दे रहे होते हैं, हम कुछ भी कोई भी बिहेवियर अचीव करते हैं शेपिंग के थ्रू, शेपिंग एंड मॉडलिंग के थ्रू. ठीक है. अब हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि हाउ टू राइट ABC या हाउ टू राइट 1 2. ठीक है. अब बच्चा पहले टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ड्रॉ करेगा. ठीक है. बच्चा पहले कभी टेढ़ी लाइन ड्रॉ करेगा, फिर सीधी करेगा, फिर कुछ करेगा, A टेढ़ा लिखेगा, 1 टेढ़ा लिखेगा, फिर आस्ते आस्ते वो मतलब जब हम उसको रिवॉर्ड करते रहेंगे, रीइंफोर्स करते रहेंगे कि वेरी गुड, ये आपने थोड़ी सी ठीक किया, थोड़ा सा और ऐसे ठीक करें, थोड़ा सा और ऐसे करें, हम उसको अप्रिशिएट करते जाएंगे, उसको रीइंफोर्स करते जाएंगे, तो वो कुछ ट्रायल्स के बाद करेक्ट बिहेवियर अचीव कर लेगा. ठीक है. दैट इज कॉल्ड शेपिंग. अब इसके एक मेडिकल स्टूडेंट की एग्जांपल देती हूँ शेपिंग की मैं. एक मेडिकल स्टूडेंट है जो सीख रहा है कि कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे स्टिचेस लगाने हैं, कैसे इंजेक्शन लगाने हैं. स्टार्ट में वो थोड़ी सी मिस्टेक्स करता है, लेकिन उसके जो सीनियर्स होते हैं वो उसको गाइड कर रहे होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स, कि ऐसे नहीं, ऐसे स्टिच लगाएं, ऐसे लगाएं, ऐसे. आहिस्ता आहिस्ता वो शेपिंग के थ्रू परफेक्शन सीख जाता है. मिस्टेक्स कर कर के सीखते हैं ना डॉक्टर्स भी, और कोई भी आप देखें कि नॉर्मल लाइफ में भी हम मिस्टेक्स कर करके सीखते हैं, चाहे हम ड्राइविंग सीख रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं, तो हम मिस्टेक्स कर करके करेक्ट बिहेवियर अचीव करते हैं. वो क्या है? शेपिंग. मॉडलिंग क्या है? नंबर 5 प्रिंसिपल इज मॉडलिंग. नंबर 5 है जी मॉडलिंग. मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन. मॉडलिंग हम किसी को भी मॉडल बना लेते हैं अपना. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को अपना आइडियलाइज करते हैं, टीचर को मॉडल बना लेते हैं. कुछ ऐसे होते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस को अपना उनसे इंस्पायर होके उनको मॉडल बना लेते हैं. क्या? A female gets a haircut to look the same as her favorite actress. A medical student decides to be a surgeon after doing work with an excellent surgical specialist. जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं. उनको
अपना मॉडल बना के सीखते हैं। तो मॉडलिंग क्या है कि आप अपने बिहेवियर, आप किसी के बिहेवियर को इतना आइडियलाइज कर लेते हो कि वैसा बनना चाहते हो, उसके मॉडलिंग के थ्रू फिर आप सीखते हैं और अपना कोई टारगेट सेट कर लेते हैं, अपने बिहेवियर को टारगेट, किसी बिहेवियर को टारगेट करते हैं कि ये बिहेवियर हमने अचीव करना है, तो आप मॉडलिंग के थ्रू भी सीखते हैं। ये स्किनर ने प्रिंसिपल्स बताए थे कि रीइंफोर्समेंट, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप के थ्रू आप किसी बिहेवियर को अचीव करते हो, पनिशमेंट के थ्रू, फिर एक्सटिंक्शन का उसने एक प्रिंसिपल बताया, शेपिंग और मॉडल। ये थे ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये हमारा न्यू बिहेवियरिज्म में हम स्किनर, बी एफ स्किनर ही करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया न्यू बिहेवियरिज्म। ओके, जो कुछ ना आपको समझ आए तो आप फिर उससे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, इसको सुने और समझें। ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।